गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज DSC 103 कल्चरल डाइवर्सिटी की बुक हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग थ्रू अ फ्लावरिंग ट्री विच इज़ अ स्टोरी रिटन बाय A.K. रामानुजन एंड इट डील्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लेडीज़। फीमेल्स के साथ ये डील करती है और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि एन ओल्ड लेडी वॉज देयर विद 2 daughters. One of the daughter knew how to convert herself into a flowering tree, other knew how to collect flowers and change her into human being again. And ultimately what happened, that very secret was revealed to a prince. He saw how does she convert herself, how does she change herself, and ultimately the prince married her. The sister of that very prince, she didn't like her because she wanted her to be to act her according to the girl, and ultimately she took her to Sorhan orchard where she was changed into a thing, like she was changed, she was forced to change herself into a flowering tree, and when she just changed herself back into a human being, she couldn't be, because water was not poured properly, and ultimately she reached the place where her elder sister-in-law was living. She didn't recognize, and ultimately her husband also, who became a saint, he also reached there, and both of them, they met there. They didn't recognize each other, and ultimately the sister of that very prince was sending daily, she was sending beautiful maids to his bedroom, but he didn't respond and he didn't show any interest in them. And ultimately what happened, let us see. So after some days, she started sending one or the other of her beautiful maids into her bedroom every night. Every night, one or the other beautiful maid was sent. Maids को उसने भेजना शुरू किया. She sent 7 maids in 7 days. 7 दिनों में 7 maids उसके पास गई. The maids held his hands and caressed his body. Maids उसके हाथ पकड़ती, उसकी बॉडी को हक करती and tried to rouse him from his stupor. और उसकी जो बेहोशी जैसी थी उससे उसको उठाने की कोशिश भी करती. But he didn't say a word or do a thing. लेकिन ना तो उसका कोई एक्शन होता, ना वो कुछ कहता था. Finally, the servant maids got together and dressed up the thing that sat at the palace door. अब उन servant maids को बहुत गुस्सा आया. They were annoyed, and ultimately what did they do? If he is not interested in normal human beings, let us take this thing in. आज वो जो पीस जैसा था, जो वो लेडी थी, जो लड़की अपने आप को फ्लावरिंग ट्री में चेंज करती थी, कि आज उनको तो वो पता नहीं था, लेकिन उस लड़की को जो थी वो विदाउट हैंड्स एंड फीट उन्होंने पहुंचा दिया उस लड़के के रूम में. विद द परमिशन ऑफ द डिस्गस्टेड क्वीन, they left it on her bed. जो क्वीन थी, शी वॉज वेरी मच डिसगस्टेड. वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था. तो उन्होंने क्या किया, उसकी परमिशन से उस चीज़ को, उस लड़की को जो प्रिंस है उसके बेड पे छोड़ दिया. ही neither looked up nor said anything. ना तो उसने उसकी तरफ देखा, ना उसने कुछ कहा. But this night pressed and managed his legs with its stump of an arm. The girl recognized him, that he is my husband. So what did she do? She pressed and massaged his legs. उसकी legs को press किया, massage किया अपने stump of an arm. arm जो थी, पूरी तो थी नहीं, stump था, उससे press किया. It moaned strangely. अजीब तरह से वो रोने लगी. He got up once and looked at it. वो उठा और उसकी तरफ देखने लगा. इट वॉज सिटिंग एट हिज फीट. वो लड़की उसके पाँव की तरफ बैठी थी. ही स्टेयर्ड एट इट फॉर फ्यू मोमेंट्स. उसको देर तक उसको देखता रहा, एंड देन रियलाइज इट वॉज ओनली हिज रियली हिज लॉस्ट वाइफ. उसने पहचान लिया शी वॉज हिज वाइफ. देन ही आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड. उसने पूछा क्या हो गया. शी हु हैड बॉट नो लैंग्वेज, who had no language all these months, suddenly broke into words. तो इतने महीनों से लड़की ने उसने बात भी नहीं की थी, suddenly she started speaking. She told him whose daughter she was, whose wife, and what happened to her. She told him entire story of hers. पूरी कहानी सुना दी. What shall we do now? अब क्या करें? Nothing much. We can only try. Let us try कहती. Bring 2 pitchers of water without touching them with your fingernails. 2 pitchers, 2 घड़े लाओ पानी के, उनमें हाथ मत डालना. That night he brought her 2 pitchers of water without anyone's knowledge. रात को उठा, किसी को बिना बताए 2 pitchers पानी के लाया. शी अटर्ड चैंट्स ओवर देम. अब देखो उसमें वो क्वालिटी थी, उसको वो चीज़ आती थी. उसने उनके ऊपर मंत्र पढ़े एंड इंस्ट्रक्टेड हिम. उसको क्या बोला, pour the water from this pitcher over me, कि इस पिक्चर से पानी मेरे ऊपर डालो. आई विल बिकम अ ट्री, मैं ट्री बन जाऊंगी. वेन एवर देयर इज़ अ ब्रोकन ब्रांच सेट इट राइट, कि जब भी कोई जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस टूटी है ना, उनको प्रॉपर सेट करो. वेयर एवर ए लीफ इज टॉर्न, पुट इट टुगेदर. अगर लीफ टूटा है तो उसको जोड़ दो. देन pour the water of the second pitcher. जब सारा जोड़ दोगे तो पिक्चर का पानी डाल देना. देन शी सैट डाउन एंड मेडिटेटेड.
वो बैठ की मेडिटेशन की. ही poured the water on her from the first pitcher. उसने फर्स्ट पिचर से उसके ऊपर पानी डाला. She became a tree, but the branches had been broken. उसकी जो ब्रांचेस थी वो टूटी हुई थी. Leaves had been torn, leaves टूटी हुई थी. He carefully set each one right. उसने सारी ब्रांचेस को, लीव्स को ठीक किया. Bound them up and gently poured water from the second pitcher. और दूसरे पिचर से पानी उसके ऊपर डाला all over the tree. Now he became a whole human being again. अब वो दोबारा से complete human being बन गई. She stood up shaking water off her hair. अपने लंबे बालों से वो पानी झाड़ती हुई खड़ी हुई. Fell at her husband's feet. She touched his feet. Then she went and woke up the queen. Her sister-in-law touched her feet also. अब वो अपनी ननद के पास गई, उसको उठाया, उसके पाँव छुए. She told astonished queen the whole story. Astonished means surprised queen को उसने पूरी स्टोरी बताई. The queen wept and embraced her. रानी रो पड़ी, उसको गले लगा लिया. Then she treated the couple of all kinds of princely food and the service. अब उसको बहुत अच्छा खाना दिया गया, उसको बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन किया गया. Had then them sit in the hall like bride and bridegroom for ritual celebration of his. अब जो रिचुअल सेलिब्रेशन थी उनकी, उसके लिए उसने उनको दूल्हा दुल्हन की तरह बिठाया एक बड़े से हॉल में. शी केप्ट देम इन द पैलेस फॉर सेवरल वीक्स. कई हफ्तों तक अपने पास रखा. देन सेंड देम होम टू फादर्स पैलेस विद कार्ट लोड्स ऑफ गिफ्ट्स. कार्ट लोड्स मीन्स कार्ट्स भर के उसने जो है गिफ्ट्स अपने भाई भाभी को दी और उनको पापा के पास भेजा, अपने फादर के पास. द किंग वॉज ओवरजॉयड एट द रिटर्न ऑफ हिज लॉन्ग लॉस्ट सन एंड डॉटर इन लॉ. राजा बहुत खुश था कि उसकी बहू और बेटा आ गए थे. ही मेट देम एट द सिटी गेट्स, टुक देम होम ऑन एन एलिफेंट हौदा इन अ ग्रैंड सेरेमनी पोजीशन थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स. और बड़े से एलिफेंट पे बिठा के उनको एक जुलूस के रूप में वो अपने घर लेके आया, पैलेस में लाया. इन द पैलेस दे टोल्ड द किंग द क्वीन एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड. पैलेस में आके उन्होंने सारा कुछ शेयर किया राजा रानी के साथ. द किंग हैड 7 barrels ऑफ बर्निंग लाइम पोर्ड इनटू अ ग्रेट पिट. राजा ने क्या किया? ही वॉज द वन हु पनिश्ड हिज डॉटर हु डिड रॉन्ग विद हर सिस्टर इन लॉ और विद अ फीमेल. राजा ने क्या किया? 7 barrels, 7 बैरल जो थे लाइम स्टोन के, चूने के, उसने एक बड़े से पिट में डलवाए, बड़ा सा गड्ढा बनवाया. एंड थ्रू हिज यंगेस्ट डॉटर इनटू इट. यंगेस्ट, यंगर, यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटी डॉटर को उसमें डाल दिया. ऑल द पीपल हु सॉ इट सेड टू देमसेल्व्स. उसने जिन जिन लोगों ने वो सब कुछ देखा, उन्होंने क्या कहा? आफ्टर ऑल एवरी रॉन्ग हैज़ इट्स पनिशमेंट. कि जितना भी हम गलत करते हैं ना, वी आर पनिश्ड. सो दिस वॉज योर स्टोरी. इट डेल्ट विद फोक टेल से ये डील करती है. एंड इट टेल्स अस, देखो इसमें स्टोरी हमारी फिनिश हो गई है. आई सेंड यू अ वीडियो रिलेटेड टू बोथ दीज बुक्स. इनमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे आप अपने इसके जो है वो आपको आएंगे. रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, हाउ यू अटेम्प्ट. आई सेंड यू अ वीडियो ऑफ द सेम. आई सेंड यू कंटेंट ऑफ द सेम. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, जस्ट एक ओवरव्यू सा लेते हैं स्टोरी का. 2 girls are there, they want to, their mother is there who is very hard working, that very old woman. She does menial jobs for the sake of her family. Younger daughter wants to help her mother. उसमें वो attitude है, she wants to help her mother. She changes herself into a flowering tree, and ultimately how is she treated? She is treated very badly. And the daughter-in-law of the daughter ऑफ द किंग, शी इज़ जेलिस ऑफ हर बिकॉज शी हैज़ सर्टन क्वालिटीज़. नॉर्मल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है. जो अगर हम इन जनरल हम रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं तो सिस्टर इन लॉ की ब्रदर के साथ जो बॉन्डिंग है, जो ननद की अपने भाई के साथ बॉन्डिंग है, शी डजेंट वांट टू शेयर इट विद हर सिस्टर इन लॉ. वो सिस्टर इन लॉ के साथ शेयर नहीं करना चाहती है. साइकोलॉजिकल रीजंस हैं. बचपन से दोनों इकट्ठे बड़े हैं, बचपन से उन्होंने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया है. लेकिन गलत कहाँ होता है? व्हेन अ गर्ल इज़ कमिंग टू द होम ऑफ द फैमिली, जब वो घर आ रही है तो शी is coming for her husband and for family also, but priority goes with her husband. So what does she want? She wants to have a place there. वो जो लड़की है, जो ब्राइड है, वो एक प्लेस चाहती है. बट इफ़ शी इज़ नॉट अकोमोडेटेड द वे शी इज़ नॉट अकोमोडेटेड हेयर बाय हर सिस्टर इन लॉ, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है? यू नो, वो डिज़ास्टर्स कंसिक्वेंसेज आते हैं. नॉट दैट वेरी गर्ल, हाउ डज शी बिहेव विद हर सिस्टर इन लॉ? शी लीव्स हर इन सोराहन ऑर्चर्ड में, उसको छोड़ देती है. व्हेन शी इज़ आस्क्ड बाय हर मदर, शी सेज दैट आई डोंट नो वेयर डिड शी गो. और मदर ने भी इंक्वायर नहीं किया बिकॉज शी वांटेड टू फॉइल हर डॉटर्स मिस्टेक्स. और मदर ने इंक्वायर नहीं किया. व्हाट डिड she do? She told him that I don't know where is she. She didn't even ask that very girl, what did you do with your sister-in-law? और उसने उस चीज़ को छोड़ दिया. Now how much she suffered in the process. वो जो लड़की है, she was not a girl now, she was a thing. Now she changed into a thing and she suffered. It was because of the that very person who left her to the palace, who left her at the
स्टेट वेयर हर सिस्टर इन लॉ वॉज रूलिंग, वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ सर्वेंट्स के हाथ में जाती है, देयर शी जस्ट वेट्स फॉर द मोमेंट कि मैं कुछ बोलूँगी. शी couldn't speak even a single word for for a long period, and the moment by chance when her husband comes, she starts, she reveals her identity and she sees her husband. She wants to be converted into a human being because she could do that. She knew that very art. उसको वो पता था कि वो कैसे कर लेगी. So entire story tells us about various aspects of women कि फीमेल के कितने एस्पेक्ट हैं. शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ filled with jealousy, she knows how to hide, she knows how to protect. तो ये साइकोलॉजिकली जो है फीमेल को अलग अलग तरह से इसमें डिपिक्ट किया गया है. लेकिन एट लास्ट वेयर डज शी विन? शी विन्स when she shares each and everything with her sister-in-law, and they just go back to her father, the king of that very area. And the father, when he comes to know about the reality, he is the fellow who punishes the girl who did wrong with her sister-in-law. So this was all your story all about. Now next video, whenever I'll send you how to go through the your reading passage, which is which you have to do with reference to the context how you attempt. तो मैं आपको वो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट किस तरह से करने हैं वो मैं दोनों बुक्स का वीडियो आपको सेंड करूँगी. सम ऑफ द चैप्टर्स आई हैव ऑलरेडी सेंड यू सिलेबस ऑफ द सेम. सम ऑफ द चैप्टर वी हैव टू गो थ्रू इन डिटेल. तो जिन चैप्टर्स को हमें डिटेल में करना है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है डेलीवरेंस, वो डिटेल में करना है, उसमें से हमें रीडिंग जो आपका रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है वो आएगा. लेट मी सी वेदर फ्लावरिंग ट्री का हमें आएगा या नहीं आएगा. अगर आएगा ये डिटेल्ड स्टडी के लिए है तो आई विल सेंड यू वीडियो ऑफ द सेम ऑल्सो. अगर नहीं है तो फिर एटलीस्ट डेलीवरेंस हमारा ख़त्म होने वाला है, आई विल सेंड यू वीडियो ऑफ द सेम. सो गुड डे.